اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 149 اور 50۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ان آیات میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَمِنْ حَيْثُ، اور اے رسول آپ خرجت کہیں سے بھی باہر نکلیں، فَوَلِّ تو پس پھیر لیں، وجہ کا اپنے چہرہ کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف اپنے چہرہ کو پھیر لیں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ، یہ کیا ہے؟ حق ہے، مِن رَبِّک، آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ پھر اگلی آیت میں پھر فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے رسول آپ جہاں کہیں سے بھی باہر نکلیں تو اپنے چہرہ کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہرہ کو پھیر دو، شطرہ پھیر لو، لِأَلَّا تاکہ یکون للناس علیکم حجتن کہ لوگوں کے لیے تمہارے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، پس ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ظالم ہیں، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، سو تم ان سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِي، صرف مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور میری اس نعمت یعنی میں نے تم پر اپنی نعمت کو کیا کر دیا ہے؟ پورا کر دیا ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ پہلے ہی رکوع کی یعنی پہلی، دوسری اور اس سے ایک پہلے آیت، تینوں میں اللہ نے مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ تکرار نہیں ہے، مسجد حرام کی طرف بار بار اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیرو، یہ تکرار نہیں ہے، کیونکہ اس میں کچھ حکمتیں ہیں۔ ہر بار جو فرمایا ہے ہر بار کی نوعیت الگ ہے۔ اب اس میں اس طرح جو پہلی بار کی حکم ہے اس کی علت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے اور آپ کی رضا جوئی کہ بھئی آپ کے لیے میں نے آپ کے پسندیدہ مسجد حرام کو قبلہ بنایا اور اس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا۔ دوسری مرتبہ یہ علت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ ہے، یعنی اللہ کی عادت ہے کہ وہ ہر قوم کا الگ الگ قبلہ بناتا ہے، تو اللہ نے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبلہ ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق مسجد حرام کو بنا دیا۔ پھر تیسری دفعہ کی علت یہ آئی ہوئی ہے کہ یہود مسلمانوں کے خلاف حجت قائم نہ کر دیں، کہ کیونکہ تحویل قبلہ سے پہلے یہود جو تھے وہ کہتے تھے کہ تورات میں جس نبی کے مبعوث ہونے کے متعلق لکھا ہوا ہے اس کی صفت ہے کہ وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا، اور اگر اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم نہ دیتے تو یہود کہتے کہ اس نبی کی صفتوں میں کیا ہے؟ شک ہے، تردد ہے، وہ اعتراض کرتے۔ تو اسی لیے اللہ نے
इन आयात में बार बार ये हुक्म दिया है कि अपना जो मुंह है वो काबा मस्जिद हराम की तरफ फेरें, आप जहाँ कहीं भी मौजूद हों। तो एक इसमें यह आया हुआ है कि पहली बार काबा की तरफ जो हुक्म करने का आया हुआ है उसमें एक इश्काल है कि ताकि तुम पर अल्लाह अपनी नेमत पूरी कर दे, क्योंकि अरब अपने तमाम अफ़ाल में इत्बाए इब्राहीम यानी हज़रत इब्राहीम की पैरवी करना पसंद करते थे। तो इसीलिए जो है इस पर फ़ख्र भी करते थे। ये बात मैंने पहले बताया, यहूद और नसारा जो है अपना नस्ब हज़रत इब्राहीम की तरफ करते थे और फ़ख्र से करते थे। तो इसीलिए आपकी जितनी भी सुन्नतें थीं उनको अपनाना उनके लिए क्या था, बाइसे फ़ख्र था। तो इसीलिए बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करने से क्या होते थे, तंग होते थे जो लोग हज़रत इब्राहीम के मानने वाले थे। तो अल्लाह ताला ने उनकी तंगी को आसानी में बदला और हज़रत इब्राहीम के बनाए हुए काबा को अल्लाह ताला ने हमारा किबला बना दिया। एक और तो जी है कि आपकी रज़ा के लिए किबला बनाया अल्लाह ताला ने, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि हमारा किबला क्या हो, बैतुल्लाह शरीफ हो। दूसरी बार इसलिए फरमाया कि आपकी रज़ा के अलावा फी नफ्से ही ये तहवील बरहक है। अगर आपकी ख्वाहिश, पहले तो आपकी ख्वाहिश है, अगर आपकी ख्वाहिश ना भी होती तब भी यही हमारा किबला बनता, ये बरहक है। तीसरी बार ये हुक्म आर्जी नहीं, दायमी है। क़यामत तक के आने वाले लोग बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज अदा करेंगे। ये अल्लाह ने फरमा दिया है और इस हुक्म में कभी कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता। तो ये तमाम चीज़ें थीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसीलिए फरमाया बार बार कि अब तुम जहाँ कहीं भी हो अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ फेरो और उसकी तरफ मुंह करके क्या करो, नमाज को अदा करो। तो यहाँ पर ये चीज़ें आई। फिर अल्लाह ने उससे अगली आयत में 150 में इरशाद फरमाया, कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना वयुज़क्कीकुम वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून। फिर आगे इरशाद फरमाया, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरू ली वला तकफुरून। तो इस हम पहले ये वाली आयत देखते हैं कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, कमा इसी तरह, अरसलना हमने भेजे, फ़ीकुम तुम में, किनको भेजा, रसूलम मिनकुम, अल्लाह कह रहा है कि मैंने अपनी तरफ से तुम्हारे लिए क्या भेजा, रसूल भेजा। यतलू अलैकुम, मेरी आयात तुम पर तिलावत करता है, वायुज़क्कीकुम, तुम्हारा तज़किया करता है यानी तुम्हारे नफ्स को पाक करता है, वायुअल्लिमुकुमुल किताबा, और किताब की तालीम देता है, वल हिकमता, और हिकमत सिखाता है, वायुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु, और तुम्हें उन चीज़ों की भी तालीम देता है, तमालम तकूनु तालमून, जिनको तुम नहीं जानते। ये अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने तुम्हारे दरमियान जो नबी रसूल भेजा है ये उसके काम हैं जो वो तुम लोगों के लिए करता है, और यही मकसद था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे दरमियान भेजा गया। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि नबी और रसूल की क्या तारीफ़ होती है। नबी कौन होता है और रसूल कौन होता है। अक्सर हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नबी भी बोलते हैं कि अल्लाह के नबी, हमारे नबी, और रसूल भी बोलते हैं, ऐसा है। तो क्या इन दोनों में फ़र्क है या दोनों एक ही को कहा जाता है? तो इसमें अल्लामा इब्ने हमाम लिखते हैं कि नबी वो इंसान है जिसको अल्लाह ताला ने उसकी तरफ की हुई वही की तबलीग के लिए भेजा है। यानी वो किस लिए भेजा है अल्लाह ने उनको, कि वो अल्लाह की वही की तबलीग करते हैं। फिर रसूल की भी यही तारीफ़ है कि उनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन एक कौल ये है कि रसूल वो इंसान है जिसके पास शरीयत होती है। क्या होती है?
शरीयत होती है और उस पर किताब नाजिल की गई हो, या फिर उसके लिए पहली शरीयत का कुछ हिस्सा मनसूख कर दिया गया हो, यानी ख़त्म कर दिया गया हो। अगर हम देखें शुरू से अल्लाह के जितने भी रसूल आए हैं, हर रसूल के पास एक अपनी शरीयत थी, अपने अपने अहकामात थे, लेकिन अगला रसूल जब आया तो वो अहकामात और शरीयत पीछे वाली ख़त्म होती गई और नई बनती गई। तो जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो पिछली तमाम शरीयतें मनसूख हुई और आपकी शरीयत को सबसे ऊपर का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो रसूल नबी से ख़ास है। रसूल वो है जिसकी अपनी शरीयत हो, अपनी शरीयत हो, जिसके पास किताब हो, किताब भी हो, शरीयत भी हो, क्योंकि जो शरीयत है वो अमल होते हैं। क्या होते हैं? अमल। मिसाल के तौर पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो उम्मत थी उनके पास ये शरीयत थी, ये उसूल था कि बहन भाई का निकाह हो सकता था, लेकिन जब दूसरे रसूल आए तो उनकी शरीयतों में ये बात मनसूख हो गई, बहन भाई का निकाह नहीं हो सकता, हराम है, गुनाह कबीरा है। तो इसी तरह रसूल क्या है, नबी से क्या होता है? ख़ास, क्योंकि उसके पास अपनी शरीयत और अपनी किताब होती है। अब सदरुश शरीयत मौलाना अमजद अली रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अकीदा नबी उस बशर को कहते हैं जिससे अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए वही भेजी। किसके लिए? हिदायत के लिए। और रसूल बशर ही के साथ ख़ास नहीं बल्कि मलाइका भी रसूल हैं। जैसे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, उन्हें मलाइका का सरदार कहा जाता है। तो इसी तरह अंबिया सब बशर हैं और मर्द, ना कोई जिन होता है और ना ही नबी कोई औरत हो सकती है। बात समझ आ रही है? कभी भी कोई औरत नबी नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने नबी और रसूल मर्दों में से भेजे हैं। तो उसके बाद नबी और रसूल को मबऊस करने की हिकमतें, यानी ऐसी क्या ज़रूरत थी कि अल्लाह ताला को महसूस हुआ वो हमारे दरमियान नबी और रसूल भेजें। ये है कि रसूलों का भेजना महज अल्लाह ताला का बंदों पर लुत्फ़ और उसकी रहमत है। ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने हमारे दरमियान अपने रसूल और नबी भेजे। इसमें हिकमतें भी हैं। बाज़ अहकाम इंसानों की अक्ल से ऊपर हैं, यानी हमारे सर से गुज़र जाते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह का वजूद, उसकी वहदानियत, उसका इल्म, उसकी कुदरत, अगर हमें नबी और रसूल ये तालीम ना देते तो हमें कैसे पता लगता कि अल्लाह कौन है? हम कैसे पहचानते कि अल्लाह कहाँ है? वो उन्होंने बताया कि अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे बाहर, जाहिर, बातिन, हर जगह मौजूद है। अल्लाह का वजूद उन्होंने हमें बताया कि यहाँ यहाँ अल्लाह है। फिर ये कि अल्लाह ताला का दिखाई देना, अल्लाह ताला का दिखाई देना, और फिर उसके बाद अल्लाह का कलाम कुरान पाक, और क़यामत के बाद जज़ा और सज़ा अक्ल अज खुद मालूम नहीं कर सकती थी। इन तमाम चीज़ों की वजाहत के लिए अल्लाह ताला ने हम पर रहमत ख़ास की और अपने नबी और रसूल भेजे। उसके बाद एक ही काम बाज़ औक़ात में अच्छा और बाज़ औक़ात में बुरा होता है। ठीक है, मसलन तलू गरूब ज़वाल के वक्त नमाज पढ़ना, अगर हमारे पास नबी और रसूल ना होते तो हमें कभी भी मालूम ना होता कि किन किन वक्तों में हम नमाज नहीं पढ़ सकते, या फिर ये भी मालूम ना होता कि किन किन वक्तों में हम नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर जब सूरज तलू होता है उस वक्त हम कोई नमाज नहीं अदा कर सकते, जब सूरज गरूब होता है, और इसके अलावा ज़वाल के औकात। फिर हमें यह भी मालूम ना पड़ता कि ज़वाल के औकात क्या होते हैं। इसीलिए अल्लाह ने हम पर रहमत ख़ास अता फरमाई और नबी और रसूल हमारे दरमियान भेजे। क्या चीज़ खानी हलाल है, क्या चीज़ खानी हराम है, ये हमें कैसे पता लगता? हम कैसे जान सकते थे? हम इतने अक्लमंद ज़हीन फतीन तो है नहीं। तो अल्लाह ने हमारे ऊपर रहमत की और नबी और रसूल भेजे, और उन्होंने आकर हमें बताया कि तुम्हारे लिए क्या खाना हलाल है, क्या खाना हराम है, क्या पीना हलाल है, क्या पीना हराम है। इसके अलावा रोज़ा कब रखना है, किस किस वक्त में रखना है,
उसकी सहरी कब है, अफ्तारी कब है, नमाजें किस किस औकात में पढ़नी है, कुरान मजीद की तिलावत। आज खुद अल्लाह ताला का वजूद भी हम मालूम नहीं कर सकते थे, हम ये पहचान भी नहीं सकते थे कि अल्लाह भी है कोई। इसीलिए अल्लाह ने हम पर एहसान किया और हम पर रहमत की, करम किया और अपने नबी और रसूल भेजे और हमारी ही तरह उन्हें बशर बनाकर भेजा ताकि वो हम में रहें, हमारी तरह ज़िंदगी गुजारें, फिर हम उनसे चीज़ें सीखें। तो ये हिकमतें थीं कि अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान नबी और रसूल मबऊस फरमाए। उसके बाद एक आखिरी आयत जो मैंने पढ़ी आपके सामने आज के सबक की कि फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून, सो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, तुम मेरा शुक्र अदा करते रहो और मेरी नाशुक्री ना करो। तो इसमें हम ये देखेंगे कि अल्लाह को याद करना और फिर उसके बदले अल्लाह हमें कैसे याद करता है। ठीक है, तो किसी अमल के वक्त तुम मेरे अमर और नहीं को याद करो, यानी तुम उसको याद करोगे जिस चीज़ के करने का मैंने हुक्म दिया है, और उस चीज़ को याद करोगे जब तुम कोई चीज़ कर रहे होगे, तुम्हें याद आएगा अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इसको नहीं करना, तो फिर मैं तुम्हें इसकी क्या दूंगा, जज़ा दूंगा, इसका क्या दूंगा, अजर दूंगा। फिर ये है कि तुम मुझे इबादत और अताअत से याद करो, यानी मेरी इबादत भी करो, मेरी पैरवी भी करो, फिर मैं तुमको सवाब से याद करूंगा, यानी मैं तुम्हें सवाब दूंगा, ये मेरा याद करना है। फिर यह कि तुम राहत में मुझको इबादत और दुआ से याद करो, मैं तुम्हें अता करके याद करूंगा और नेमत से याद करूंगा। फिर एक कौल यह कि तुम मुझसे सवाल करो, मैं तुम्हें अता करूंगा। फिर एक कौल यह कि तुम मुझको तौबा से याद करो, मैं तुमको अफूवर दरगुजर, यानी तुम पर करम करके तुम्हें याद करूंगा। फिर तुम मुझे दुनिया में याद करो, मैं तुम्हें आखिरत में याद करूंगा। तो कभी जिक्र ज़ुबान से होता है, जैसे हम करते हैं अल्लाह ताला की हमद सना, तस्बीहात, दरूद पाक और कुरान मजीद की तिलावत, ये ज़ुबानी ज़िक्र हैं। और कुछ ज़िक्र फिर होते हैं दिल से। किससे? दिल से। जैसे अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात के को दलाइल के साथ मानना, यानी अल्लाह में नज़र तो नहीं आता, लेकिन फिर हम अल्लाह की सिफ़ात उनके दलाइल के साथ वाज़े करते हैं कि अल्लाह तो हर जगह मौजूद है। फिर हम अल्लाह को देखने की कोशिश करते हैं, उनकी हिकमतों पर गौर व फिक्र, तदब्बुर व तफक्कुर करते हैं। फिर क्या है? ये दिल का जिक्र है। क्या है? दिल का जिक्र है। तो इमाम इब्न माजा हज़रत अब्दुल्ला बिन बसर से रवायत करते हैं, एक अराबी ने अर्ज़ की। अब अराबी कौन होता है? अरब के देहात का बंदा। जब वो नबी के पास आते थे तो उन्हें अराबी कहा जाता था। तो उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के अहकाम बहुत से हैं, मुझे कोई ऐसी चीज़ बताइए जो मैं अपने ऊपर लाजिम कर लूँ, यानी वो सबसे बेहतर भी हो और मैं उसे हर वक्त याद करूं। आपने फरमाया, तुम अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र से हमेशा तर रखो। सुनन इब्ने माजा की ये रवायत है। फिर हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि आपने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, जब बंदा मेरे ज़िक्र से अपने होठ तर करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ, यानी वो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह का ज़िक्र करता है। तो ख़ास मोमिनीन आरिफीन दिल के साथ ज़िक्र करते हैं, यानी उनकी अल्लाह से लगन दिल की मार्फत के ज़रिए होती है, सिर्फ ज़ुबानी और कलामी। हर वक्त उनके दिल में अल्लाह की याद रहती है, अल्लाह का ज़िक्र रहता है। वो दुनिया तो भूल जाते हैं लेकिन अल्लाह को याद करना नहीं भूलते। तो अबू उस्मान से किसी ने शिकायत की कि हम ज़ुबान से ज़िक्र करते हैं लेकिन हमारे दिलों में हलावत यानी मज़ा नहीं आता, वैसे ज़ुबान से हम ज़िक्र करते रहते हैं। आपने निहायत ही खूबसूरत जवाब दिया, मुझे तो बहुत पसंद आया है कि आपने फरमाया, तुम शुक्र पढ़ो कि तुम्हें इतनी तौफीक तो है कि तुम्हारे जिस्म का कोई एज़ा अल्लाह का ज़िक्र कर रहा है। तो मालूम होता है ज़ुबान का ज़िक्र करना भी अल्लाह की तौफीक है।
अगर आपके दिल में हलावत महसूस नहीं भी होती तो कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि हलावत भी महसूस हो जाएगी। एक दिन जुबान करते करते वो दिल तक उतर जाएगी, वो लफ्ज दिल में आ जाएंगे, फिर दिल भी अल्लाह अल्लाह की सदा लगाएगा। तो अबू उस्मान नहदी ने कहा, मैं उस वक्त को जानता हूँ जब अल्लाह मुझे याद करता है। तो फिर अर्ज किया गया, वो कौन सा वक्त है? उन्होंने जवाब दिया, जब मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा होता हूँ तो अल्लाह क्या उस वक्त मुझे याद करता है। जुन्नून मिस्री ने कहा, जो हकीकत में अल्लाह का जिक्र करता है वो उसके माँ सिवा को भूल जाता है, यानी उसके अलावा उसको कोई बात याद नहीं रहती, और अल्लाह हर चीज से उसकी हिफाजत करता है फिर, और उसको हर चीज का बदल अता फरमाता है, यानी उसको कोई परेशानी और तंगी नहीं होती। हजरत माज बिन जबल रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के जिक्र से ज्यादा और कोई अमल अल्लाह के अजाब से निजात दिलाने वाला नहीं है। सुनन इब्ने माजा की रिवायत है। ये भी हक तो ये था कि हम उसको याद करते, हक क्या था? हम उसको याद करते, फिर उसकी मर्जी थी वो हमें याद करता या ना करता, लेकिन वो हमारा मालिक है, हमारा बादशाह है। हम इस काबिल तो नहीं थे कि वो हमारे साथ मसावी यानी यकसा सलूक करता, हम उसको याद करते रहते, वो याद करता ना करता उसकी मर्जी थी। लेकिन मेरे अल्लाह की शान तो देखें, उसकी रहमत तो देखें। उसने कहा, मुझे याद करो तो मैं तुम्हें भी याद करूंगा। उसने कुरान में फरमाया कि मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। अब वो कैसे कैसे तरीकों से याद करता है, हम दुआ में उसे पुकारते हैं, याद करते हैं, वो दुआ कबूल करके हमें याद करता है। और हदीस कुदसी के अल्फाज हैं कि जब बंदा अकेले अल्लाह को याद करता है तो मैं अल्लाह, यानी हदीस कुदसी वो हदीस होती है जिसमें जो अल्फाज हैं वो अल्लाह ताला के खुद के होते हैं, सिर्फ पहुंचाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक होते हैं। तो उसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है, जब मेरा बंदा अकेले मुझे याद करता है मैं अल्लाह अकेले में याद करता हूँ, और जब मेरा बंदा मजलिस की सूरत में मुझे याद करता है तो मैं उसकी मजलिस से बेहतर मजलिस में उसे याद करता हूँ, और उसकी बेहतर मजलिस क्या होगी? फरिश्तों की मजलिस होगी। तो वहाँ पर फिर हमारा अल्लाह हमें याद करता है। तो फिर आगे फरमाया अल्लाह ने कि मेरा शुक्र अदा करते रहो और मेरी नाशुक्री ना करो, इबादत करके मेरा शुक्र करो, मासियत यानी गुनाहों में पढ़कर मेरी नाशुक्री ना करो। जिन चीज़ों का मैंने हुक्म दिया है उनको अपनाकर उन नेमतों को सही तरीके से अदा करके मेरा शुक्र अदा करो, यानी उन नेमतों का एहसान मानकर हक जताकर उनके जरिए मेरा शुक्र अदा करो जो जो मैंने तुमको अता किया है। अब अल्लाह ने हमें जितनी भी नेमतें दी हैं ये अल्लाह का एहसान है, इसमें किसी बंदे का कोई कमाल नहीं है। क्या आप अल्लाह के ज्यादा लाडले आ गए हैं जो अल्लाह ने आपको नेमतें दी हैं? ऐसा नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह का फजल है। वो जिससे चाहे, जैसे चाहे, जिस तरह चाहे अपने फजल से नवाजे। थोड़ा नवाजे ये उसकी मर्जी है, ज्यादा नवाजे तो ये उसका करम है। तो अल्लाह ने कहा जो जो नेमतें मैंने तुमको दी हैं पहले उनका ये एहसान मानो कि वो नेमतें मैंने दी हैं, ये भी तुम्हारा शुक्र है। फिर उसके बाद उन नेमतों को इस तरह इस्तेमाल करो जिस तरह मैंने इस्तेमाल करने का हक दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि भूल भुलैया में सोच करके ये नेमतें तो हमारी वजह से है, मेहनत हमने खुद की है, आज जो है हमारे पास हमने खुद कमाया है, अब अल्लाह ने कहा है तो मेरी राह में दो, फिर पीछे हट जाओ। नहीं नहीं, अल्लाह ने कहा उनको उस तरह उन नेमतों को इस्तेमाल करो जो हक मैंने दिया है। और आप एक बार नाशुक्री करके तो देखें, फिर बात तो वही गंजे और उस वाली आ जाएगी ना। फिर वो कहेंगे हम तो खानदानी रईस हैं, फिर अल्लाह कहेगा हो जाओ वैसे जैसे पहले थे, फिर ले आओ अपने खानदान वालों की दौलत, फिर मुझे दिखाओ ना तुम्हारे खानदानों वालों के पास इतनी रईसियत थी। तो ये अल्लाह की शान है अता करना, और फिर ये बंदे की शान है कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसको संभाले। ठीक है, तो सजदा अपने रब को है और इबलीस से यारियां।
سجدہ اپنے رب کو ہے اور ابلیس سے یاریاں، بتا حشر میں تجھے جزا کون دے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔